I think Charu ma'am has joined us, right? Ma'am? Yes, sir. Good morning. Okay, okay. So good morning, Charu ma'am. So we have like a few people right now. So already we have 11 6. Okay. So I think we can play the video and then we will start. And meanwhile, whoever will like want to join, they will join because there are other people or number of people also there. So they may Sure, sir. join later on, right? So Right, sir. Right, first, sir. okay. So I welcome you all for this webinar, very important webinar that we have we have started, we have like planned on the like this Teachers Day and on the suggestion of Charu ma'am only. So let me Thank you. introduce Charu ma'am. So Charu, Miss Charu Agrawal, sorry, Aganpal, she is by profession, she's psychologist, writer, and she writes very good poetry. I have heard those poetries, and she's by passion she's writer and an ex-IS aspirant. So her vision to work in the field of psychology was to put light with mental illness and help them come out of it with complete dedication. So that we are seeing also from for last many years, he is closely associated with us and doing very good work in the area of mental health. And she is a founder and psychologist at Hope the Psychology Clinic, that is in Faridabad, Delhi NCR, and have been doing her practice in the field from last 5 plus years. She has conducted workshops in school, colleges, government of India, uh, and other different organizations. She is a RCI license holder. In field of psychology, we all know how much importance RCI registration has nowadays, and her vision is to make mental health as normal as physical health and help our society break the mental stigma. She believes in mantra: "No hill is tough to climb. You, see you at the top." So so that is the line that like define her in a one line. So this is, and we know that she is very enthusiastic and she is doing very good work in the field of mental health, and she is associated with us from last many years. So we can say she is one of the best psychologists in Delhi and NCR. So Charu ma'am, uh, can we start the video? Right? Yes, yes, sir. So Yes, sir. thank you so much for your kind words and thank you for having me here and wishing you a very happy Teachers Day. Thank you very much, and I hope everyone will enjoy and will enjoy from this webinar. And Definitely. that is the new thing that we are beginning. So that is also on Teachers Day. So hope you will you will all like enjoy this webinar and you will get most out of this webinar. So we are Definitely. starting this video. And you can first watch the video and then we'll start something. Yes. Start with Right. webinar, right? Okay, ma'am. Right. तुझे पता है फेल होने में ना कोई बुराई नहीं है। हाँ? सच। बुराई है तो बिना कोशिश करे हार मान लेने में। एक बात हमेशा याद रखियो लल्ली, तेरा सपना ना सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तुझे पता है ज्यादातर लोग तेरे सपने पे हंसेंगे, उन्हें ना भाड़ में जाने को कहियो, वे तेरा सपना नहीं मार पाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तेरे सपने को समझेंगे।
से लगा के रखियो, वे तेरा सपना जिंदा रखेंगे। तेरे रास्ते में ना दिक्कतें और मुश्किलें भी आएंगी, पक्की बात है, लिखवा के लिए। पर ये हमेशा याद रखियो, जो अगर तेरे सामने तेरा सपना है ना, तो चाहे जौन सी भी दिक्कत हो, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। बस अपने सपने को अपनी नजरों से दूर मत होने दीजिए। तुझे पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी है ना, तो बस चाहिए हमारा सपना। और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। अपेक्षा सहाय। ज्यादातर लड़कियां मैथ से दूर ही रहती हैं, लेकिन आपने यूपीएससी मेंस में मैथ्स ली और मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर किए। इट्स कमेंडेबल। इसका क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूंगी। आपकी माँ क्या करती हैं? वो गरीब बच्चों को 10th क्लास की मैथ्स ट्यूशन देती हैं, वो भी फ्री में। गुड। अपेक्षा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती। Okay, good morning, everyone. Charu ma'am, I think we can start now. Yes, sir. And they can, if they have any question, because we have Writing is not that easy, like but Grammarly can help. some, This sentence. 1 minute, sorry. So I think they can ask question in between, or you would like to answer the question at in the last of this webinar. Definitely, sir. Definitely. So ठीक है, so we can start now and platform like this webinar is now yours and you can start with this. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, so good morning, everyone. And so I hope you all are doing absolutely fine. So as Atul sir has already introduced me, still I'll just introduce myself again. So my name is Charu Ganpal. I am a psychologist by profession, writer by passion, and an ex-IAS aspirant. Okay. So this video, which we chose to show you people over here, is like कि सपने, dreams. अगर देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, right? And I'm sure आप में से काफी सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कुछ को हो सकता है बोरिंग भी लगा हो कि इतना प्लेन सा वीडियो क्यों मैम ने चूज करा है to show it to us. See, I believe sometimes less words are very, very important to teach you big lessons in life. कभी-कभी ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है. Sometimes your actions should speak louder than your words, and I am a true believer of that. So yes, I welcome you all on board for this webinar, and I'm sure अगर आप लोग ये webinar join कर रहे हैं, so you people have this dream of becoming an IAS, and being an ex-IAS aspirant, I definitely know how it feels, जब आप एक IAS की तैयारी करने के लिए आते हैं, or maybe when you think about कि हमें एक IAS officer बनना है, हमें UPSC एग्जाम क्रैक करना है, वो फीलिंग इज जस्ट वाओ. आई मीन दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, जो शायद वही लोग समझ सकते हैं जिनको आईएएस बनना है. आप उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. आप उस पैशन को, उस ड्रीम को
लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकते. That's something that you feel, and I'm sure आप लोग जितने भी लोग मुझे वहाँ सुन रहे हैं, you people must be connecting to the thing कि yes, that's somewhere true. So in this webinar, we'll be covering 3-4 main topics about UPSC and IAS. So first thing first would be smart strategy to crack UPSC is the main title of the webinar. जिसमें subtitles रहेंगे what is UPSC. I'm sure आप सबको पता होगा. Still, I'll be putting some light on that thing कि what UPSC is all about और ये examination क्या है. Second would be smart strategy to crack UPSC, जिसमें I'm sure आप में से कई जितने लोग यहाँ पर हैं, we don't have a big number, but जितना भी है, I am happy because I believe अगर यहाँ से एक इंसान भी सीख के जाता है, that has always been my thought process. So my work is done because maybe you know a chain is formed. आप शायद किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, and the mission is accomplished, right? Third thing would be art of notes making. Again, a very very important topic. क्योंकि सबको पता है मेंस का जो एग्जाम होता है वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं एंड whereas prelims is all about objective thing. So answer writing skill gives you an edge from the other aspirants if you want to crack and clear this examination. Last would be details about how to choose an optional paper. Again, a lot of people have a lot of confusion about कि हम कौन सा optional choose करें. So I'll be putting some light. और जितना इस 1 hour 45 minutes whatever we have now, जितना justification I can do, I'll be doing it. So without wasting any further time, let's start with it. And I'll be using Hindi English both so that आप सब लोग उससे comfortable हो. और आपके as Atul sir said, अगर आपकी कोई भी question से queries हैं, keep sending it across because I really enjoy interactive sessions. मुझे वो monologue अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो. Let's keep it more interactive. Okay. So starting with the first thing, what is UPSC? I am sure आप सबको पता है, but I really want the answers to keep popping in. मुझे बताइए UPSC क्या होता है? Anybody wants to give me the full form of UPSC over here? इतना सबको पता होगा. So I can see few of people who have joined my module. Union Public. Let's go in with the messages, please. Yeah, say it now and then drop in a message, please. Yes. Yeah, it's Union Public Service Commission. Right. Great. It is basically a central job. Right. Like Thank you IAS, so much. IFS. Okay, Shraddha, thank you. Somebody else also answered. I think Prachi answered. So Prachi, thank you for the answer. So yes, UPSC is Union Public Service Commission. Okay. So I believe for some people, this exam becomes God. For some people, this exam is life. For some people, it's a passion. And for some people, it is, just an exam. And, the feeling goes so on and so forth. हर किसी का अपना एक इमोशन अटैच होता है जब उस एग्जाम में आते हैं. इंटरव्यू में जब काफी लोगों से पूछा जाता है कि आपको आईएएस एस्पिरेंट क्यों बनना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स का सपना था, कुछ लोग बोलते हैं बचपन से हमने ये सपना देखा था. Some people say that it was combination for India. और जैसे इस वीडियो में उन्होंने बोला कि मेरा एम वो था कि मुझे वो नहीं बनना था जो मैं देखती आई थी अपनी मदर को करते, but from her I got inspired to do and achieve my dream, right? So UPSC जो एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करती है. ये 3 stages में divided होता है ये एग्जाम. First one is the preliminary exam, which is also known as PT. Second one is the mains exam, जिसमें पूरा आपका descriptive होता है with the optional paper. And final round होता है आपका interview round, जिसको हम personality test भी बोलते हैं. Based on this examination, काफी सारी posts निकल के आती हैं, in which the highest and the topmost engine of the stream is IAS, Indian Administrative Services. Second is IFS, that is Indian Foreign Services. Third is IPS, that is Indian Police Services. उसके बाद काफी सारी पोस्ट और आ जाती हैं. IRS होता है, that is Revenue Services. IFS एक और होता है, which is Forest Services. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. IFS जो होता है उसको IFSOS भी बोल देते हैं. One is Foreign Service and one is Forest Service. So depending upon the rank that you're getting, you get the position in this examination. एक साल में ये पूरा प्रोसेस एक बार ही कंडक्ट होता है यूपीएससी के द्वारा. प्रीलिम्स में जो होता है, it is mainly objective. And I'm sure prelims का syllabus सबको पता होता है. So I always used to say, and a lot of IAS aspirants would say, anything under the sky वो आपके syllabus में आ सकता है. From history to politics to environment, ecology, anything and everything can be there in this examination. So prelims is all about the objective
टेस्ट जिसमें कि आपको बहुत स्मार्टली जितना आप पढ़ते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कितने टेस्ट सीरीज अटेंड करते हो. आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ लर्न बट देन टेस्ट योर नॉलेज इक्वली, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे तो इट बिकम्स लाइक आप अपने ही जंगल के राजा हो. आपको लग रहा है आपको सब आता है, बट जब द रियल टेस्टिंग हैपेंस सो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. आई ऑलवेज बिलीव कि उस एग्जाम का सेटअप आप अपने लिए प्रैक्टिस कर करके रेडी कर सकते हैं, राइट. हम साइकोलॉजी में रोल प्लेस की भी बात करते हैं कि अगर हमें किसी चीज का फियर है, विद हेल्प ऑफ रोल प्ले वी कैन कम आउट ऑफ इट. उसी तरीके से एग्जामिनेशन फियर जिसको है, once in a week, once in 10 days, once in 15 days आप अपना एक सेटअप रेडी कर सकते हैं. और जिस टाइम पे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, सपोज अगर प्रीलिम्स का एग्जाम शुरू होता है रफली 11, मैं गेस कर रही हूँ 11 के अराउंड अगर शुरू होता है, तो 11 बजे आप अपने घर पे, इंस्टीट्यूट में, लाइब्रेरी में, जहां पर भी आप अपना एक एग्जाम सेटअप लेके बैठ सकते हैं और उस टाइम पे उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. डिसहार्टन नहीं होना. कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर गलत आ रहे हैं, इट्स रियली ओके. और उस गुड स्कोर को सर पे भी मत चढ़ने देना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है अरे वी आर स्कोरिंग वेरी गुड, हमारा तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा. फॉर बीइंग अ गुड आईएएस एस्पिरेंट इन फ्यूचर ऑल्सो, और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी आपको बैलेंस और न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी होता है. I always believe in the mantra that never let success get to your head and failure get to your heart, right? So objective test series आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नेट से मटेरियल ले सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज आई थिंक आपको अनगिनत मार्केट में मिल जाएगी, उसकी कोई कमी नहीं. द बेस्ट थिंग अबाउट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर एन आईएएस इज कि आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा. And to choose the right material is equally important. I'll be putting light on that as well. Okay. So prelims जिसका clear हो जाता है, cut off हर साल high low जाती रहती है. So that is something I mean आप उस cut off तक अगर पहुंच जाते हैं, so yes you clear the prelims exam. Second आता है मेंस. अब कुछ लोग जो नए इस फील्ड में आते हैं, they are very confused about one question and that is कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करें और जब हमारा प्रीलिम्स हो जाए या प्रीलिम्स देने के बाद हम मेंस की तैयारी शुरू करें, या कैसे होना चाहिए. सी पीपल हु आर न्यूअर हियर, आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन द फैक्ट कि डोंट वेट फॉर योर प्रीलिम्स टू गेट क्लियर टू वर्क ऑन योर मेंस, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो जाता है. सो हमेशा प्रिपरेशन जो शुरू होनी चाहिए वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के होनी चाहिए. और जिन लोगों को सिलेबस यहाँ पे पता होगा, यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर मेंस का सिलेबस आप करते जाते हो, काफी सारा प्रीलिम्स का चंक उसमें से क्लियर होता जाता है. द ओनली थिंग इज एग्जाम पैटर्न अलग होता है. तो आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रीलिम्स में पढ़ना होता है, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पूरा जो हो जाता है वो मेंस का हो जाता है. सो ऑलवेज कीप द प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रिपरेशन गोइंग हैंड इन हैंड. और जहां पर आपको लगता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम अप्रोच होने वाला है, मे बी 1 या 1.5 मंथ पहले, कुछ लोग 2 मंथ भी ले लेते हैं, आप मेंस की तैयारी को रोक सकते हैं और पूरा फोकस जो है आप इसमें प्रीलिम्स पे, टेस्ट सीरीज पे देना शुरू कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप ऐसे थ्योरी पढ़ते जाएंगे और आप सोचेंगे वहां पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आई एम श्योर आप लोग उस चीज से एग्री करेंगे. सो डे 1 से आई बिलीव जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इफ यू रियली वांट टू क्रैक पीटी इन फर्स्ट गो, तो हर वीक प्लीज एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो. इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम, but it makes your journey towards the prelims very very easy. Second आता है means. See means के लिए again as I said it's like a descriptive paper. तो उसमें आपका कितना आपको knowledge है, कितने अच्छे से आप आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, वो सारी बहुत मैटर करती हैं. और जब आपका means क्लियर हो जाता है, then comes your interview और the personality round. ठीक है. मैं हमेशा इस एग्जाम को स्नेक एंड लैडर का गेम बोलती हूँ. उसका रीजन इसलिए ये है कि प्रीलिम सपोज आपका क्लियर हो गया, आप मेंस में आ जाते हैं, राइट. गॉड फॉरबिड अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता, यस एवरीबॉडी गेट्स डिसहार्टेंड बिकॉज़ सबको ये एग्जाम फर्स्ट को में निकालना है, कुछ लोग निकाल भी लेते हैं, राइट. सो स्नेक एंड लैडर का गेम इसलिए क्योंकि अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता तो आपको नेक्स्ट ईयर वापस से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप जहां रुके थे वहीं से यूपीएससी कहेगा कि आप आके एग्जाम दे दो. फॉर अ फैक्ट अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है और अगर आपका इंटरव्यू सेक्शन में आपका रह जाता है, सो यस सैडली यू हैव टू स्टार्ट विद योर जर्नी अगेन नेक्स्ट ईयर.
वापस से प्रीलिम से. So that's why I call this thing as a snake and ladder game. और आप काफी लोग इस चीज से कनेक्ट भी करेंगे. So I've put basic light on what UPSC is, कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, right? अब आप में से कुछ लोगों को ये भी होगा that you said you're an ex-IAS aspirant and you said that you're a psychologist. इसका मतलब आप IAS ऑफिसर नहीं बने. Yes, I would like to keep it very very clear and very very honest to you people. देखो, मैं हमेशा एक चीज में मानती हूँ कि जो लोग का हो जाता है वो आपको ये स्ट्रैटेजीज बता देते हैं कि what to do to crack this exam. But I believe people who have not cleared this exam due to XYZ reasons, वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना, so that आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए, वो गलतियां आप क्या बच सकते हो. That is more important. Yes, for me, I attempted IAS exam. That was one of my passion. somehow मेरा जो है प्रिपरेशन अच्छी थी, कुछ चीजें हुई, कुछ नहीं वो करी, एंड देन माय फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आई सेटल्ड वेरी वेल इनटू दिस फील्ड, और somehow मैं वापस उस पैशन में अपने नहीं जा सकी. बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट बिकॉज आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस फील्ड, एंड द फील्ड आई एम इन करंटली, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. और मैं इस चीज को सक्सेस लेती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और इस पे एक वेबिनार दे रही हूँ, बिकॉज आई रियली फील जो भी मैंने चीजें सीखी है वो मैं पास ऑन कर सकूँ. और एक चीज देखो गाइस, मैं लाइफ में हमेशा कहूंगी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी. सी, लाइफ इज बिगर देन एनी एग्जाम इन लाइफ. आई एम रिपीटिंग, लाइफ इज बिगर देन एनी एग्जाम. ठीक है, सो ध्यान रखो, इस एग्जाम में जब आते हो एक लाइफ एंड डेथ का सवाल बना के मत आओ. जिन गलियों में आप जाते हो, जिन इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, वहां से हम भी निकले हैं. वी हैव स्पेंट टाइम ओवर देयर, एंड आई एग्जैक्टली नो व्हेन यू गेट बैक टू दैट प्लेस, इट फील्स ऑसम. मतलब मुझे तो कभी भी वहां पर जाके कभी ऐसे फीलिंग नहीं है, शिट मेरा एग्जाम क्यों नहीं हुआ. आई ऑलवेज एंजॉयड दैट जर्नी, आई हैव ऑलवेज लर्नड फ्रॉम इट कि ये एग्जाम की तैयारी सिर्फ आपको आईएएस नहीं बनाती है, ये एग्जाम की तैयारी आपको जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनाती है. आपको एक ऐसे लाइफ लेसन्स दे जाएगी दैट यू विल सी दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. सो वंस यू गेट इनटू दैट प्रिपरेशन, आई रियली होप क्वेश्चन पे आपका एग्जाम हो जाए. बट अगर नहीं होता, प्लीज डोंट मेक इट अ पॉइंट फॉर लाइफ एंड डेथ. जिंदगी बहुत बड़ी है, इससे आगे बहुत बड़ी पड़ी है, और शायद आपने जो इस प्रिपरेशन में सीखा है वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकता है. आई एम अ लाइव एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. आई वुड नेवर से कि मेरे को रिग्रेट है मेरा एग्जाम नहीं हुआ. I always say I've learned from this journey, and wherever I'm pretty happy about it. ठीक है, so सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था. सेकंड जो हम आएंगे वो हम आएंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू क्रैक यूपीएससी. ओके, सो एज आई सेड कि इसमें मैं दो चीजें बताऊंगी कि टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए एंड नॉट टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए. तो मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स हर एक लिस्ट में बनाए हैं. आई वुड लाइक टू शेयर दोज थिंग्स विद यू. बट मूविंग फर्दर, आई वांट टू आस्क कि किसी का कोई सवाल है, या सबने अपनी स्क्रीन को म्यूट और कैमरास को ऑफ करके चिल कर रहे हो, या सो रहे हो, या सुन भी रहे हो मुझे. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. कैन आई हैव अ यस? हेलो. यस श्रद्धा. हाँ मैम, टेस्ट सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं. किसकी श्रद्धा? टेस्ट सीरीज के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं. श्रद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप देखो, मैं एक चीज कभी गारंटी नहीं करूंगी, वो है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है. तो मैं प्रेडिक्ट करती हूँ, वो प्रेडिक्शन सही भी होती है, बट आई वुड नेवर से कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, डेफिनेटली करो, कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करो. बट श्रद्धा, यूपीएससी का एग्जाम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है. आप हर तरफ से तैयारी करके जाओ. आप ये मत सोचो कि प्रीवियस ईयर में अगर ये आया था तो ऐसे ही होगा. Keep yourself very open-ended. Previous year questions practice करना always gives you an edge, definitely. But don't expect कि यूपीएससी ने अगर लास्ट ईयर ये पैटर्न दिया था तो इस साल भी वो यही देगा. यूपीएससी आपको ऐसी ऐसी गुगलीज फेंकता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया. And one feeling that you always have post your PD exam, which I have also experienced, is like अगर आप में से किसी ने दिया है आप कनेक्ट करोगे, अगर आप में से किसी ने नहीं दिया तो आप फ्यूचर में इस चीज को देखोगे कि जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम दे के बाहर आते हो, और अगर आपसे कोई आपका योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, एनीबडी, अगर वो आपसे पूछते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ, सो यू हैव दिस ब्लैंक लुक ऑन योर फेस कि पता नहीं कैसा हुआ. यू कांट जस्टिफाई दैट थिंग कि सो एक फीलिंग वो आती है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं. फॉर दैट मैटर जो यूपीएससी टॉपर भी होता है, पास के जितने भी टॉपर्स रहे, टू नेम अ फ्यू, लाइक टीना डावी, she cleared it with the flying colors in the very first attempt, right?
सो उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने अपना लिस्ट में नाम 10 बार चेक करा कि क्या जेन्युइनली मैंने टॉप कर लिया है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम कि आपको एंड तक नहीं पता होता कि क्या होने वाला है. So yes, to answer your question, I would say कि definitely practice the previous year questions, but don't expect कि यही चीज आने वाली है. Keep your mind very very open about everything. और हाँ, अच्छे से पढ़ के जाओ. As I said, टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो, because if you are lucky enough, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस as it is भी आते हैं. मेरे साथ हुआ है, मैंने कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करी थी and genuinely 5 to 6 questions as it is जो थे वो प्रीलिम्स के एग्जाम में आए थे. एंड 5-6 क्वेश्चंस भी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी यूपीएससी का आपका जो प्रीलिम्स का निकलना होता है रिजल्ट, वो एक मार्क से भी वेरी कर जाता है. सो मे बी 1 क्वेश्चन राइट, यू आर थ्रू दैट. 1 क्वेश्चन रॉन्ग, आप लिस्ट में नहीं आते. राइट श्रद्धा? मैम फिर ऑनलाइन टेस्ट देने की जरूरत नहीं, मतलब लाइक प्रीवियस ईयर हम लोग लगा ले, वही टेस्ट सीरीज हो जाएगी उस, है ना? नहीं श्रद्धा, कीप इट अ बैलेंस. कीप इट अ बैलेंस, मतलब सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मत जाइएगा. प्रीवियस ईयर भी कर लो बट टेस्ट सीरीज भी करो. टेस्ट सीरीज करने का रीजन ये होता है कि देखो, इंस्टीट्यूट्स का एक फायदा डेफिनेटली ये चीज रहती है कि उनको पता है कि करंटली क्या चीज चल रही है. सी फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो मुझे पता है कि अपडेटेड साइकोलॉजी टेस्टिंग क्या है, थेरेपीज क्या है. उसी तरीके से पीपल हु आर सिटिंग इन दोज इंस्टीट्यूट, उनका एक एडवांटेज हमेशा आपको मिलेगा कि उनको ट्रेंड पता रहता है, राइट? बिकॉज दे आर इन टू दैट फील्ड. तो टेस्ट सीरीज भी करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करो, और अब टेस्ट सीरीज जो आपकी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है. नहीं भी ऑनलाइन लेनी है सो यू कैन बाय इट फ्रॉम, अगर आपको इंस्टीट्यूट से नहीं भी अप्रोच करना तो बाहर बुक स्टोर्स होते हैं. सो टू नेम इट, राजेंद्र नगर जो करोलबाग के पास है, दैट्स द मेन आईएएस हब. और एक मुखर्जी नगर भी है, दैट इज फॉर हिंदी मीडियम पीपल, एंड फॉर इंग्लिश मीडियम या मिक्स ऑफ इट राजेंद्र नगर विच इज नियर करोलबाग. तो मेट्रो का ऐसे सब चीजें आप इजिली वहां पर जाके वहां से मटेरियल ले सकते हो. बट एज आई सेड, अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, देखो मार्केट में जो लोग हैं वो आपको सब सेल करना चाहेंगे, बट बाय द सिलेक्टेड मटेरियल. कहने का मतलब है, अगर आपको पता है कि आप आने वाले 1 महीने में एक ही टेस्ट की बुकलेट सॉल्व कर पाओगे, तो डोंट गो फॉर 5 बुकलेट्स, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं. और होता क्या है, धीरे धीरे आप जर्नी में देखोगे वो पाइल अप होता जाता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये करा ही नहीं. So buy one, solve that, or buy 2, solve that, then go for the other one. उससे क्या होगा, you will feel pumped up and motivated to go for the further test series. और एक चीज और ध्यान रखना श्रद्धा, इसमें जब भी आप सॉल्व करते हो, जो आपकी चीजें गलत आती हैं उसको अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पर कौन से मेरे पॉइंट्स गलत हो गए. उससे अगर हो सकता है तो अपने पॉइंटर्स या नोट्स बना. दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके मैम. राइट. आई थिंक किसी ने 1-2 क्वेश्चंस और पूछे थे, वो मैंने मिस कर दिए. सो गाइस यू कैन सेंड इट अगेन, और मैं फर्दर स्ट्रेटजीज पे मूव इन कर रही हूँ. सो सी स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू क्रैक यूपीएससी. 4 स्ट्रेटजी तो मैंने यहाँ पर डिफाइन करी है. नो योर सिलेबस. यस, अ लॉट ऑफ पीपल डू वन बिग ब्लंडर कि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता. उनको लगता है कि हमें सिलेबस का एक टॉपिक पता चल गया तो हमें सब पता चल गया, आप उस टॉपिक को करेंगे और बाकी का बाद में देख लेंगे. ऐसे नहीं होता. बेस्ट थिंग बेस्ट इज, आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर दो, अपने रूम में कहीं भी पेस्ट कर दो, और आते जाते उसका एक ओवरव्यू लेते रहो. उससे क्या होगा, जब वो सिलेबस आपके माइंड में स्कैन हो जाता है, यू आर मच मोर अवेयर. सी आई ऑलवेज बिलीव यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम होता है, इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द बुक्स, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स योर कंट्री, एंड नाउ टुवर्ड्स द वर्ल्ड. बिकॉज हम सिर्फ एक वो कंट्री नहीं है, इंडिविजुअली चल रहे हैं, वी आर ग्लोबल नाउ, राइट? सो जब आपको सिलेबस पता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक कोई है, पॉल्यूशन के ऊपर एक टॉपिक है, राइट? तो पॉल्यूशन के ऊपर एक आपने स्टैटिक स्टडी कर ली. Can we crack UPSC without coaching? What will you suggest for self-study? I'm coming on that question. So एक होता है आपने स्टैटिक जो है उस टॉपिक को पढ़ा कि ठीक है पॉल्यूशन ये होता है, इतने टाइप्स का होता है, दैट इज आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. एक आपने अपग्रेडेड नॉलेज ले ली, किसी भी एनवायरनमेंट या किसी भी इकोलॉजी की बुक को उठा के आपने उसमें से अच्छे से पढ़ लिया, कोई एक पर्टिकुलर नोट्स किसी इंस्टीट्यूट लेके उसमें से पढ़ लिया. बट देन करंटली करंट अफेयर्स में क्या चीजें चल रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सपोज अगर आप अवेयर हैं सिलेबस के लिए, तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं कि कोविड के टाइम पे
जो एक अच्छी चीज हुई वो ये हुआ कि पॉल्यूशन पे काफी अच्छे से कंट्रोल हुआ, एंड दैट इज द रीजन यू कैन इवन सी कि स्काई बहुत ज्यादा क्लियर आपको दिखता है। बट वो आप तभी कोट कर पाएंगे व्हेन यू आर क्लियर अबाउट द सिलेबस। सो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू पीपल, टू डू लिस्ट में ये होगी कि अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। प्रिपरेशन आपने जब भी शुरू करनी है, अगर आपने एम कर लिया मुझे आईएएस करना है, बेशक प्रिंट आउट आज निकाल के लगा दो, वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है। कुछ लोग को होता है कि हमें नहीं लोगों को बताना हम आईएएस करें, अपनी कबर्ड खोलो, कबर्ड के अंदर पेस्ट कर दो, सो दैट ऑब्वियसली नोबडी कैन पीप इनटू योर कबर्ड, राइट? या जहां भी आपको सेफ लगता है वहां पे लगा दो, फोन स्क्रीन में कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी लगे, सो दैट यू कीप गोइंग थ्रू दैट थिंग, और वो ओवरव्यू लेते लेते वो जो सिलेबस है वो आपके माइंड में स्कैन हो जाएगा, और उससे आपको पता रहेगा कि मुझे किस तरीके से इस ब्रैकेट को कवर करके चलना है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू नो इज नो योर पैटर्न। नो योर पैटर्न का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिम ज्वाइन करा है वेट लॉस करने के लिए, और आप जिम में अच्छे से एक्सरसाइज करते हो और बाहर आके आप जंक खा लेते हो, दैट मीन्स योर वे इज नॉट हेल्दी, राइट? यूपीएससी में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन मेंटल हाइजीन कह सकते हो, डिसिप्लिन कह सकते हो, यू कैन गिव इट एनी नेम। सो नोइंग योर पैटर्न इज लाइक कि अगर आपको पता है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और 5th आवर में जाके आपको कुछ एंजाइटी फील हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता फिर भी आप अपने आप को ओवरलोड कर रहे हो, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नोइंग योर बॉडी एंड माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, सो वंस यू नो योरसेल्फ, वंस यू सेट अ लिमिट फॉर योरसेल्फ, और वंस यू सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ as per your pattern, then the journey becomes very very important. So knowing your pattern में आप ये चीज का ध्यान रख के चलेंगे कि what your roommate is doing, what your friend is doing to prepare for this exam should not define your goal. आपको अपना गोल अपने तरीके से डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आई एम गुड टू वर्क स्ट्रेट 10 hours in the go, that's my pattern, बट मैं वो सबसे नहीं एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है? मेरा ये पैटर्न रहता है कि मैं बैक टू बैक अपने सेशंस लेके वर्क कर लेती हूँ, सो दैट्स माय पैटर्न। So knowing your pattern would give you an edge over the other people, because आप अपने ट्यूनिंग से चल रहे हो, अपने दिमाग से चल रहे हो, you're not listening to what other people are saying। क्योंकि अगर आप दूसरे के सुन के चलोगे, देखो ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप ओरिजिनल नहीं रहोगे, फेक रहोगे, डोंट माइंड मी सेइंग दैट वर्ड, तो 10 दिन में आप वापस बैठ जाओगे। सो इफ यू गो बाय हु यू आर, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ यू, तो लॉन्ग रन से जाओगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स अबाउट। Okay, my third point be start early. किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट वुड बी स्टार्ट अर्ली। यस, सो अगेन काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? देखो, राइट टाइम की अगर मैं बात करूं, आई बिलीव जिस दिन आप सपना देख लो वहीं से आपका राइट टाइम शुरू हो जाता है, राइट? तो आपका सवाल होगा, तो अगर स्कूल में सपना देखा तो स्कूल में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, व्हाई नॉट? अगर आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी बुक्स बोला जाता है दैट यू शुड स्टडी एनसीईआरटी बुक्स, राइट? तो स्कूल में तो एनसीईआरटी बुक्स ही कराते हैं। आई बिलीव अगर किसी ने अभी 11th या 12th किसी ने पूछा था, आई मीन 11th और 12th, सो कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? फॉर श्योर यू कैन डू इट। कोई ऐसा वो नहीं है कि या एक एग्जाम की बिगनिंग लाइन जरूर है कि ठीक है आप इतनी एज पे 21 के अराउंड आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, बट गवर्नमेंट ने या किसी ने भी रूल सेट नहीं करा कि आप 15-16 साल की उम्र में प्रिपरेशन को शुरू नहीं कर सकते। आई ऑलवेज बिलीव, एंड दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि जितना जल्दी आप इस जर्नी को शुरू करते हो उतना बेटर आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप उतने ही फ्री माइंड से इस एग्जाम को दे पाते हो। तो इफ यूर इन स्कूल, इफ यूर 11th एंड 12th, तो अपने लिए सपोज वीकेंड पे आप 1 घंटा निकाल रहे हैं कि ठीक है इस घंटे पे मैं 1 घंटे में आई स्टडी दिस टॉपिक, तो सोच के देखो, अगर आपने 11 से उस जर्नी को शुरू कर दिया और हर हफ्ते आपने एक टॉपिक करते करते करते, सो जब तक आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आके 1 साल अपना प्रिपरेशन ब्रेक लेके एग्जाम देंगे, डोंट यू थिंक लाइक यू विल बी अ प्रो इन दिस थिंग? ऑब्वियसली यू विल बी, राइट? क्योंकि तब तक आप एक बहुत इजी माइंडसेट से आ रहे हैं, राइट? अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कॉलेज में हैं और आपको लग रहा है आप लेट हो गए हैं, देखो कोई जल्दी कोई लेट नहीं होता है। एज आई सेड, द अर्ली यू स्टार्ट द बेस्ट इट इज, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर कम बिल्डअप होता है। अगर आप कॉलेज में भी हैं तो प्लीज ट्राई टू बैलेंस इट। अगेन वीकेंड प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे अपना कॉलेज अटेंड करो या अपने कॉलेज की पढ़ाई करो, वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम निकाल के। जिसको कोचिंग ज्वाइन करनी है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको सेल्फ स्टडी करनी है, सी पीपल हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम विद सेल्फ स्टडी आल्सो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम विलेज एरियाज क्लियरिंग दिस एग्जाम, क्योंकि उनके अंदर एक शिद्दत थी कि हमें इस एग्जाम को निकालना है। आई बिलीव काफी सारी चीजें एक्सक्यूजेस बन जाती है जब एग्जाम नहीं होता। सम पीपल से दैट लक प्लेज अ रोल, समहाउ या इवन आई बिलीव दैट थिंग कि मेहनत के साथ थोड़ा सा आपका लक फैक्टर उसमें वर्क करता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं दिन रात इस एग्जाम को क्लियर करने की, सैडली उनका नहीं हो पाता। बट आई बिलीव उनके लिए कुछ और जर्नी वेट कर रही होती है, राइट? सो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग कि कॉलेज टाइम में भी आप अपना कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, बट कॉलेज वाले बच्चे ये गलती ना करें। कुछ कॉलेज वाले बच्चे दे डू अ मिस्टेक कि वो पूरा फोकस आईएएस पे दे देते हैं। सी, graduation degree is a basic requirement for this examination. God forbid अगर आपने पूरा टेंशन वहां पर दे दिया और आपका जो ग्रेजुएशन स्टडी है वो कहीं ना कहीं लैक कर गया और अगर आपका कोई एग्जाम रह गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जाम। सो ट्राई टू बैलेंस, बैलेंस इज द की। तो आप वीकेंड पे जो है आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, वीकडेज में अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जब आपके कॉलेज के एग्जाम्स आने वाले हैं उससे 1.5 months पहले आप अपनी, अगर सेकेंड ईयर में आप लोग हैं तो अपनी आईएएस की तैयारी को प्लीज थोड़ा सा रोक दें और पूरा फोकस वहां पर लगा दें आपके जो एग्जाम्स कॉलेज के होंगे। एंड फॉर फाइनल ईयर पीपल डेफिनेटली वंस यू आर डन विद योर एग्जाम आई वुड सजेस्ट कि 1 साल डेफिनेटली आप लोग ले लो। कुछ लोग ये भी करते हैं कि सीधा कॉलेज से निकले, अगर उनको एक एज अप्रोप्रिएट है तो वो कहते हैं चलो ट्रायल के लिए इस एग्जाम को देते हैं। देखो ये यू नॉट बाइंग क्लोथ्स ओवर है, राइट? सो मैंने देखा है 60 to 70% लोग ये 60% तो एटलीस्ट से गलती कर देते हैं कि मैंने ट्रायल के लिए वो एग्जाम दिया था। देखो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड आपका नहीं करने वाला, आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनरल कैटेगरी को जो है 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, सबका अलग अलग एक होता है अटेम्प्ट्स का। मैं कैटेगरी वाइज जा रही हूँ, डोंट फील बैड अबाउट इट, बट दैट्स द नॉर्मल ट्रेंड दैट गवर्नमेंट हैज सेट, राइट? सो 5 अटेम्प्ट्स में आपको वो चीज निकालनी होती है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 तक अब है, पहले कम थी अब बढ़ा दी है। सो इफ यू गो फॉर ट्रायल तो आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया एंड यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट थिंग। आप कभी किसी इंटरव्यू राउंड में जाके नहीं कहेंगे कि मैंने तो ट्रायल के लिए दिया था। आई एम श्योर दोस पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जाम ट्रायल के लिए नहीं है। सो प्लीज अपना फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, क्योंकि हर एक फेलियर के साथ यस एक ह्यूमन साइकिल होता है। आपका मोटिवेशन, आपका एंथुजियाज्म कितना भी कोशिश कर लो डाउन थोड़ा तो जाएगा। तो कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट अपना पीटी दैट इज प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लो। सो कॉलेज के बाद टेक अ स्ट्रेच ऑफ फुल 1 year to prepare yourself and then give this exam. Trial and error method मेरे अकॉर्डिंग तो प्लीज अप्लाई ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, राइट? फोर्थ पॉइंट वुड बी, दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्टडी एंड टीच दैट टॉपिक टू समबडी। मैंने देखा है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने जो पढ़ा है हमने किसी और को बताया तो उसका फायदा हो जाएगा, हमारे नोट से वो क्लियर हो जाएगा, मतलब उसका एग्जाम निकल जाएगा, हमारा नहीं निकलेगा। सी आई ऑलवेज बिलीव इन की you always grow by making other people grow along with you। मतलब वो एटीट्यूड और वो पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है कि नहीं हम अपने पास ही सब समेट के रख लें, हम किसी और को ना दे। ये मेरी सोच है, अगर मैं किसी को यहाँ पर हर्ट नहीं कर रही या किसी को टैग नहीं कर रही हूँ, बट आई ऑलवेज बिलीव नॉलेज को जितना शेयर करते हो उसका फायदा पहला ये होता है कि सामने वाले की नॉलेज भी बढ़ती है, दूसरा फायदा ये रहता है कि आपकी नॉलेज डबल होती है, क्योंकि आप उस चीज को पढ़ रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो वो उसका रिटेंशन आपके माइंड में बहुत अच्छा होता है। सो दैट्स माय फोर्थ थिंग। या फिर किसी और को पढ़ा दो, अपने भाई बहनों को पढ़ा दो, मम्मा पापा के साथ डिस्कशन कर लो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लो, सो दैट वो आपका रिविजन फॉर्म में हो जाता है, राइट? फिफ्थ पॉइंट फ्रॉम माय साइड वुड बी हैव अ बैकअप प्लान। यस, अगेन कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम यूपीएससी पे फोकस करें और बैकअप प्लान ना रखें। सो आई वुड से नहीं, बैकअप प्लान रखना इज इम्पोर्टेंट। सी, ग्रेजुएशन के बाद व्हेन यू गिव दिस एग्जाम, सो आप इजीली 1 से 2 साल का अपना टारगेट रख के चलते हैं इनिशियली। मैं लोगों को जो जनरली सजेशन देती हूँ वो ये देती हूँ कि डेफिनेटली आप रेगुलर तो कुछ नहीं कर सकते यूपीएससी के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट हैव टाइम। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हो एंड इवन व्हेन यू आर इन कोचिंग एंड ऑल, आपकी सुबह कब होती है रात कब होती है आपको पता नहीं चलता, और वो जो एक एड्रेनलिन रश उस टाइम पे होता है दैट इज सुपर अमेजिंग, आपको लाइफ टाइम याद रहता है, मतलब आप थकते भी नहीं हो, शायद मैं नहीं थकती थी, राइट? सो आई ऑलवेज टेल पीपल एक बैकअप प्लान रखो, और वो आप किस फॉर्म में रख सकते हो,
फॉर एग्जाम्पल जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल बनाना है, प्लीज एनरोल फॉर योर मास्टर्स. और मास्टर्स एनरोल डेफिनेटली आप ओपन से कर पाओगे, एंड आई फील इग्नू इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एनरोल, क्योंकि एक तो इग्नू का जो ओपन कोर्सेज है दे आर सुपर अमेजिंग. इग्नू का जॉब एम्प्लॉयमेंट भी काफी अच्छा है जितना मैंने सुना है. सो यू नो इट रियली गिव्स यू एज. तो होता क्या है, आप सीधा थोड़ा थोड़ा पढ़ के ईयर एंड पे एग्जाम देने जाएंगे, वहां से आपकी ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाती है, राइट. आपको साइकोलॉजी लेना है, आपको हिस्ट्री लेना है, जो भी लेना है, और आपको 2 साल बाद आपकी मास्टर्स डिग्री भी हाथ में होती है. कहने का मतलब आपको ये नहीं लगेगा दैट यू नो मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, व्हाट नेक्स्ट. तो यू कैन एनरोल फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम फ्रॉम ओपन. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम नहीं है, मेरे को तो रेगुलर करना था, यू कैन डेफिनेटली यू नो गेट इनटू सम रेगुलर प्रोग्राम आल्सो. बट आपके वो 2 साल वेस्ट नहीं हुए, आपके हाथ में एक डिग्री आपको मिल जाएगी विच कैन गिव यू एन एज फ्रॉम अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को साइकोलॉजी ऑप्शन लेना है, उसने मास्टर्स का जो है इग्नू से अगर साइकोलॉजी में कर लिया, so in future you know if you don't get into IAS, so you can become a practicing psychologist definitely with a higher education, with a higher you know degree, और इंटर्नशिप और प्रैक्टिस करके आप आ सकते हैं स्ट्रीम में. आप काउंसलर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कोप होगा. क्योंकि जब आप एक एज क्रॉस करेंगे, मे बी यू नो व्हेन यू वंस यू 25 26, अगर आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स अर्न कर रहे थे, हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल एंड ऑल, शायद आपको थोड़ा पिंच करे. तो अपना बैकअप प्लान लेके चले. बैकअप प्लान लेने का ये मतलब नहीं है कि you're becoming negative about not being an IAS. It's like you know you're being smart enough कि अगर ये नहीं होता, I have something else to do. As I said, it is not the matter of life and death. हो जाता है super amazing, नहीं होता तो प्लीज दिल छोटा ना करें, लाइफ बहुत बड़ी बड़ी है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट टू डू लिस्ट में होगा हैव अ कूल माइंडसेट. कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बहुत एंशियस रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं. इसी पर्सनालिटी किसी भी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और IAS में तो पर्सनालिटी इज लाइक यू रियली नीड अ गुड पर्सनालिटी, क्योंकि आपको 2-2 मिनट में ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं. यू नो वंस यू आर एन IAS ऑफिसर, यू नो यू सिट विद मिनिस्टर्स, यू आर वर्किंग फॉर योर नेशन व्हिच इज अ बिग थिंग. सो यू रियली नीड टू बी वेरी क्लियर ओवर हियर. आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए. अगर आप में से किसी को होती है तो मैं ये नहीं कह रही दैट दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू. वर्क करो अपने ऊपर. यू नो इफ यू आई बिलीव यू नो साइकोलॉजी में हमेशा कहते हैं बिहेवियर्स कैन बी लर्न, दे कैन बी अनलर्न एंड दे कैन बी रीलर्न. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर आपको एंजाइटी होती है, कुछ भी चीज होती है, सो यू कैन वर्क ऑन इट एंड ओवरकम दैट थिंग. और हमेशा लाइफ में ये एटीट्यूड रखो कि नहीं आता तो सीख लेंगे, right? So have a very cool mindset. Next point would be choose your circle wisely. मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अगर हमने IAS की तैयारी करनी है, हमें सिर्फ पढ़ाकू लोगों से दोस्ती करनी है. देखो कहीं पे भी किसी भी बुलेटिन बोर्ड पे ये चीज नहीं लिखी हुई है कि आपको अगर IAS क्रैक करना है तो आपका रूममेट 12 घंटे पढ़ेगा तो ही आप IAS बनेंगे. I always believe आपका सर्कल बहुत अमेजिंग होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक IAS, जो कि अपने आप में एक मैराथन है. इट इज नॉट 100 मीटर्स. मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी कि जल्दी जल्दी भागेंगे तो थक जाएंगे. ये 100 मीटर्स का रेस नहीं है, मैराथन है. यू हैव टू बी लाइक स्लो एंड स्टेडी बट स्मार्ट इनफ टू विन द रेस, राइट. सो चूज योर सर्कल वाइजली. मैं आपको पॉइंट दूंगी कि आपके सर्कल में एक स्टूडियस इंसान भी डेफिनेटली होना चाहिए जिसके साथ आप डिस्कशंस कर सके. एक कूल माइंडसेट वाला इंसान भी होना चाहिए जो यू नो जैसे कि आप डेली भाषा में बोलते हैं जुगाड़ू, जिसको पता होता है चीजें कैसे करनी है. एक ह्यूमरस पर्सन भी होना चाहिए कि जब आप बहुत सैड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, वो आपको हंसा सके. यू नो एक मस्ती वाला इंसान भी होना चाहिए. सो इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. उसका रीजन ये रहता है कि मे बी once in a week if you're having a bad day, you can sit with that person, you know, learn life का कुछ नया experience, and you know next day be all good to you know come back with a bang. तो 12 घंटे पढ़ने से एग्जाम होता है ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ, नो योर पैटर्न. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 घंटे पढ़ो बट वो रेगुलर होना चाहिए. आपको अपना गोल पता होना चाहिए. पता ये नहीं होना चाहिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ. इट हैज टू बी अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. ओके, सो ये टू डू लिस्ट मैंने आपको बता दी है. किसी के डाउट्स है तो आप मुझे भेज सकते हो, बिकॉज आई एम नेक्स्ट मूविंग ऑन what not to do, which I believe is more important than to-do list. ठीक है, what not to do में मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगी. जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे या जैसे आप टेस्ट सीरीज के लिए जाएंगे, जो भी करेंगे, जब आप राजेंद्र नगर की गलियों में आएंगे या जब आप बुक स्टोर्स पे जाएंगे, ऑनलाइन मटेरियल भी देखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है. डोंट पाइल अप दैट मटेरियल. मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को हाईलाइट कर चुकी हूँ, क्योंकि
वो एक अर्ज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें आपकी भी गलती नहीं होती कि आपको लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट अर्ज, क्योंकि होगा क्या, वो जो पर्सन आपको बुक सेल कर रहा है, दे आर डूइंग देयर जॉब, यू नो, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डू योर जॉब। जब आपको पता है कि इस हफ्ते आप यही बुक पढ़ पाओगे, अगर वो पर्सन आपको बोल रहा है अरे आप अगर ये बुक नहीं लोगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, सो डोंट बी अ फूल, सॉरी, आई मीन डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि वो पर्सन आपको नहीं बताएगा ना आपका प्रीलिम्स कैसे होगा, यू नो द सिलेबस वेल। वो एक मार्केटिंग करके आपके मन में डर पैदा कर रहा है कि अगर आपने ये बुक नहीं ली तो आपको प्रीलिम्स नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यू शुड नो कि इस वीक मेरा अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी वीक है और मैंने यही पढ़ना है और मेरे पास ऑलरेडी इतना मटेरियल पड़ा हुआ है और मुझे सिर्फ इस एक मटेरियल की जरूरत है, तो मैं वही बाय करूंगी। एंड देन डेफिनेटली मैं तो आसपास ही रहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं वाना के उस ड्राइव पे रहती हूँ, सो आई विल कम बैक अगेन and buy it and study it again, not a big deal, okay? So don't pile up books, क्योंकि होता क्या है जब आप इतनी सारी बुक्स इकट्ठे कर लेते हैं और उसमें से 10 में से सिर्फ 2 किताबें पढ़ेंगे, तो एज ए सेड आप डीमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ या पढ़ ही नहीं रहा हूँ, जबकि वो नहीं होता। तो आपको बंडल नहीं इकट्ठा करना, आपको क्वालिटी मटेरियल उठाना है, उसको पढ़ना है, रिविजन भी करना है और फिर धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। सेकेंड, डोंट फील प्रेशराइज्ड बाय लोग क्या कहेंगे, क्योंकि किसी भी फील्ड में आई बिलीव कि अगर आप ये सोचो लोग क्या कहेंगे तो आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते। एक लाइन बहुत बेहतरीन कही गई है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, स्पेशली इन अ जर्नी लाइक IAS विच इज अ लॉन्ग जर्नी, विच इज लाइक अ मैराथन। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे IAS तो होता नहीं, बहुत टफ है, बट देन गो बाय द स्टैट्स, गो बाय द फैक्ट्स। क्या लोगों का नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ है, किसी को 4 साल लगे, किसी का 1 गो में हो गया। So possibilities are in. So you have to be very firm in your mindset कि लोग क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, that is something you have to see. Okay. Moving on further would be, as I said, it's a marathon. ये 100 meters race नहीं है. Please भागो मत उसमें. Go slow and steady because you have to keep your motivation pumped up for a long run. कभी कभी बीच में थकोगे भी, मतलब ऐसा लगेगा नहीं करना। कीप योर गोल इन फ्रंट ऑफ योर आइज कि मेरे को एग्जाम क्यों क्लियर करना है, उसको कहीं पे लिख के लगा लो, या जो भी टॉपर्स होते हैं उनकी स्टोरीज पढ़ो या उनका कुछ इंटरव्यू लगा लो, क्योंकि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, अगर आपका 5 दिन में एक दिन मन नहीं है पढ़ने का तो उस दिन अपने आप को ब्रेक दे दो, बिकॉज कभी कभी आपके बॉडी माइंड को डेफिनेटली रेस्ट चाहिए होता है टू कम बैक बैंग, यू नो, बैक विद अ बैंग। ओके, नेक्स्ट वुड बी योर रीजन टू बी एन IAS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम IAS बने, तो वो आपका इनर ड्राइव तो नहीं है। अगर आपका इनर ड्राइव है, इट इज वेल एंड गुड। सो यू नो योर रीजन टू बी एन IAS ऑफिसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नेशन को सर्व करना है, आपको क्या करना है, अगर वो पैशन और वो जो एक आपका ड्राइव है वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियर है, देन ट्रस्ट मी योर ड्रीम इज लाइक अचीवेबल। आप बहुत अच्छे से उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो फर्दर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी, इस ड्रीम को सिर्फ इमोशनल ड्रीम ना रखें। मैंने देखा कुछ लोग बहुत ओवरली इमोशनल हो जाते हैं इस चीज को लेके। एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ योर इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि सिर्फ इमोशनल होने से एग्जाम नहीं होगा। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स की योर पेरेंट्स वुड बी हैप्पी, यू वुड बी हैप्पी, आपको वीकेंड कार मिल जाएगा, बहुत चीजें मिलेंगी, बट प्रैक्टिकलिटी तो ये है कि पढ़ोगे तो ही सब मिलेगा। सो ड्रीम्स देखो, क्योंकि उसके बिना पूरा नहीं होता, पर ड्रीम्स को अप्लाई करके उसको एक्शंस में भी लाओ। ओके, सो डोंट जस्ट ड्रीम, वर्क ऑन इट एज वेल। ओके, सो मेरी तरफ से कुछ ये थी कि कुछ चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स में मत आओ, बुक्स को पाइल अप मत करो, दौड़ो मत इस रेस में। इट्स अ मैराथन, गो स्लो एंड इजी विद इट। फर्दर वुड बी कि सीधा सीधा 10 से 12 घंटे के लिए मत पढ़ो। अगेन कुछ लोगों को लगता है 12 घंटे पढ़ेंगे तो ये ऐसे होगा, नहीं, कंसिस्टेंसी इज दैट 4 घंटे पढ़ो, बट यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडिंग एंड यू शुड नो कि यहाँ से आप उसको कहाँ आगे लेके जा रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज बहुत जल्दी क्वेश्चंस आगे मूव कर रहे हैं तो मैं नहीं सारे रीड कर पा रही। सो वेटिंग फॉर 2 seconds, प्लीज फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस। मैम न्यूज़पेपर से इफेक्टिवली नोट्स कैसे बना सकते हैं? इससे ज्यादा करंट अफेयर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, अगेन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि न्यूज़पेपर को अगर हम पूरा करेंगे तो ही, अगेन सी, अगर आप न्यूज़पेपर को सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़ोगे, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। सारी चीजें आपको पॉइंट्स में नहीं भी बनानी है, कभी कभी क्या होता है, आपको कटिंग भी ले सकते हैं और उसको मार्कर या हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ लोग एक गलती ये भी करते हैं कि वो सब कुछ ही हाईलाइट कर देते हैं। देखो, सब कुछ ही हाईलाइट करना है तो क्या ही फायदा ना,
मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और आप उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करती थी वो ये होती थी कि मैंने पेपर लिख देती थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 में जाएगा, राइट, और मैंने हर एक पेपर के 4 अलग अलग मोटे मोटे से रजिस्टर्स बनाए हुए थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एनवायरमेंट का है तो मैं इस पेपर में डाल दूंगी, मेरा हिस्ट्री का है तो मैं उस पेपर में डाल दूंगी। अब वो मुझे कटिंग डालनी है या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस टॉपिक में लिखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से 4 बुकलेट्स बना लेते हो, टॉपिक वाइज उसमें डाल देते हो, तो न्यूज़पेपर जब आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आपके पास टारगेट होगा। रैंडम मत पढ़ो प्लीज, इट्स नॉट लाइक कि आप रैंडम पढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके, मूविंग फर्दर, आंसर राइटिंग स्किल, वीडियो विल बी अच्छा। आंसर राइटिंग स्किल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, देखो हर साल लाखों लोग, हजारों लोग इस पेपर को लिखते हैं, कुछ का सिलेक्शन होता है। उसका रीजन मेंस में ये आ जाता है कि आपका आंसर राइटिंग स्किल बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यूपीएससी आपसे बड़े बड़े वर्ड्स की डिमांड नहीं कर रही है, यूपीएससी आपके वोकैबुलरी चेक के लिए नहीं बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है, ह्यूमन साइकी जो होती है उसको सिंप्लीफाइड चीजें पसंद आती है। अगर आप एक टेबल पे बैठे हैं वो सब मेस्ड अप है, ऑब्वियसली योर माइंड विल बी कंफ्यूज। जितना क्लीन टेबल उतना क्लीन आपका माइंडसेट, ऐसे कहा जाता है वर्क प्लेस पे, राइट, या आपके स्टडी टेबल पे। जब आप उस इंसान को वो आंसर देंगे जो वो इजीली रीड करके he or she is able to connect the dots, don't you think you will get better marks? You know, आपका आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, और उसमें आप कुछ कोट कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आप उसमें कोट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से उठा के डाल सकते हैं। जितना उसका स्टैटिक प्लस करंट में आंसर देंगे उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आने के स्कोप हो जाते हैं। पेंसिल से आप कुछ पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। सो यू शुड कीप योर पेपर वेरी नाइस, क्लीन एंड क्रिस्प, सो दैट जो पढ़ रहा है उसको, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के ऊपर, यू नो ब्रिटिशर्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपका आंसर बहुत क्लीन पॉइंटर्स में लिखा हुआ है, अगेन पॉइंटर्स में आंसर अगर आप देते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। सो पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस पर्सन ने स्टैटिक पार्ट भी कवर अप कर दिया है, राइट, एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, कुछ कोड भी कर दिया है, और आपका न्यूज़पेपर से भी चीजें अटैच कर दिया। सो एग्जामिनर गेट्स टू नो दैट दिस पर्सन इज अवेयर अबाउट व्हाट ही और शी इज सराउंडेड बाय, एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। आपको अपने आंख कान अपना पूरा आंखें खोल के रखनी होती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड, ठीक है। सेकेंड थिंग वुड बी, जो अपने नोट्स बनाते हैं, एज आई सेड प्लीज हाइलाइटर से सब हाईलाइट ना कर दें, कोई फायदा नहीं है, यू शुड मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड थिंग इज, कुछ साइकोलॉजी टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, कलर्ड पेन से अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप कलर्ड पेन से बनाते हैं तो एक तो कुछ चीजें पढ़ने में अट्रैक्टिव होती है, रिटेंशन अच्छा हो जाता है। रेड पेन थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि लॉन्ग रन में वो आइज के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। सो इफ यू वांट यू कैन अवॉइड दैट थिंग। बाकी कलर्स आप यूज कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं बट कम यूज करिए, राइट। फर्दर आई वुड शेयर कि जैसे मैंने कहा 4 अपनी बुकलेट्स बना लो, एक टॉपिक लो, उसको स्टैटिक स्टडी करो एनसीईआरटी से, अपग्रेडेड बुक से, फिर न्यूज़पेपर से करके कटिंग लगा दो या उसके पॉइंटर्स लिख दो। तो अगर आप इस तरीके से अपनी नोट्स मेकिंग पे फोकस करेंगे, सो यू नो योर आंसर स्किल्स कैन बिकम वेरी वेरी बेटर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग। अगर आप हफ्ते में 4-5 आंसर्स या क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, किसी से चेक करा सकते हैं, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, अपने फ्रेंड से चेक करा सकते हैं, अपने मेंटोर या जो भी आपके टीचर्स हैं उनको दे सकते हैं, और उनसे फीडबैक लेके, अब फीडबैक लेके अगर आप रख देंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। यू नो यू शुड वर्क ऑन दैट फीडबैक, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आंसर राइटिंग में मेरा यही था, बिकॉज बहुत सारी चीजें, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी हमें कवर अप करनी पड़ रही है। अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगेगा, सो इन फ्यूचर यू नो वी कैन कम अप विद मोर गुड मॉड्यूल्स। इसके बारे में आपको अतुल सर मेल भी कर देंगे कि हम फर्दर किस मॉड्यूल के साथ आ रहे हैं आईएएस, सो यू कैन रजिस्टर ओवर देयर एज वेल। वो थोड़े डिटेल्ड होते हैं, राइट। So next would be details about how to choose an optional. देखो ऑप्शनल चूज करने के लिए ये माइंडसेट मत रखो कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, स्कोरिंग क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट मिस्टेक कि पहले के टाइम में होता था हिस्ट्री ले लेते थे, यू नो ज्योग्राफी ले लेते कि स्कोरिंग है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो ट्रेंडिंग है, उससे आप क्या करोगे? योर इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, मैथ्स ऑप्शनल के बारे में बताया गया है, व्हिच इज वेरी रेयर, बट उस पर्सन का इंटरेस्ट था, उसने लिया और उसने यूपीएससी क्रैक भी किया, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट एरिया किस चीज में है। टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी एज एन ऑप्शन, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी था इन माय आईएएस प्रिपरेशन। साइकोलॉजी अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो आपको बहुत फायदे होते हैं, और ये ऐसा नहीं है मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ साइकोलॉजी की, ये जेन्युइन फैक्ट है। क्योंकि देखो
आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना, आपको एंजाइटी पे वर्क करना, वो सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी एट अ बेसलाइन you become aware about your own pattern, how to work on your mechanism and everything. फिर अगर आप टॉपिक्स उठा के देखते हैं, लर्निंग, मेमोरी, इससे क्या होता है, कुछ जैसे निमोनिक्स वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका लर्निंग भी बेटर होता है. देयर आर फ्यू क्लूज की जिससे आप अपने नोट्स मेकिंग बेटर कर सकते हैं, अपनी लर्निंग बेटर कर सकते हैं. थिंकिंग पे जो पैटर्न होता है, थिंकिंग का पूरा टॉपिक है एक्सक्यूज मी इसके ऊपर, जिसमें आप कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग पे वर्क करते हैं. सो दैट कैन हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग स्किल. एंड टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी और ह्यूमन साइकी, वो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यू विल बी अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ, और सामने वाला पर्सन भी काफी ज्यादा आपसे उस चीज में इम्प्रेस होगा कि ओके, हैविंग अ साइकोलॉजी इज एन ऑप्शन, डेफिनेटली मतलब कि आपको ह्यूमन साइकी के बारे में कुछ तो अपडेशन है. सो अगर आप ओवरऑल देखते हैं, दिस ऑप्शन really helps you to grow further and to take things in a better way. And as I said, हम कुछ और मॉड्यूल्स के साथ आएंगे जिसमें हम और चीजें डिटेल में बताएंगे, बट मैं ये नहीं कह रही बाकी ऑप्शंस बेकार होते हैं. एज आई सेड, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं. आई जस्ट पुट सम लाइट ऑन साइकोलॉजी एज एन ऑप्शन, अच्छा कैसे हो सकता है आपके लिए. ओके, टू वाइंड अप एंड टू सम अप एवरीथिंग, कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ नए बता रही हूँ. सी, स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड. बैलेंस इज द की. डिसिप्लिन भी रहें, रिलैक्स भी करें. अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन अपने आप को, बॉडी माइंड को रिलैक्स देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट वीक एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ओवर एक्सर्ट ना करें अपनी बॉडी को. 10-12 घंटे पढ़ने से सिर्फ आईएएस नहीं होता. कंसिस्टेंसी इज द की. 5 घंटे पढ़े, बट वो हर रोज कंसिस्टेंसी से पढ़े. एंड यू शुड नो व्हाट यू आर रीडिंग, यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडिंग. और वो एक टॉपिक को ऐसे पढ़ो, ये मेरे जो कोच थे उसमें आईएएस के टाइम पे, वो कहते थे एक टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि बस सामने वाला कुछ भी पूछ ले, you should be very clear about it, which was a very healthy and very good advice. Further, it's a marathon, go slow and wise, don't be fast. ट्रेन हो जाओगे, 100 meters नहीं है. हाइज एंड लोज आएंगे. हाई डेज को जितने अच्छे से लेते हो, लो डेज में अपने आप को एक वल्नरेबल होने का चांस दे सकते हो. रिलैक्स करो. नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वुड बी अ बेटर डे फॉर यू. मून जाता है, सन आता है, that's nature and that's human nature as well. Choose your field wisely. अगर आप एक ऑप्शन चूज कर रहे हो, वाइसली चूज करो. ये फील्ड में भी अगर आप आ रहे हो, वाइसली चूज करो. थकना इज ओके, बट अगर आप क्रिप करोगे, कंप्लेन करोगे, जैसे जो आउट स्टेशन से आते हैं, उनको अगर लगेगा यहाँ खाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द हार्श रियलिटीज, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए. हम यहाँ पर सिर्फ रिश्ते बनाने नहीं आए हैं. रिश्ते बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट पढ़ाई इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. आई स्टिल रिमेम्बर, एक जगह मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए क्लास ज्वाइन करी थी. उन पर्सन ने बहुत एक अच्छी चीज बोली थी. उन्होंने कहा, जिस दिन ये एग्जाम नहीं होता ना, उस दिन कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपका पिलो होता है जिसपे आपके आंसू जा रहे होते हैं. व्हिच इज वेरी राइट. ओके, सो अपना फोकस करके रखो कि एग्जाम निकालना है, और अच्छे से उस पर वर्क करो. मेक इट योर पैशन, कि मेरा पैशन है, मेरा ड्रीम है, मुझे फुलफिल करना ही करना है. कीप अ राइट मेंटल एटीट्यूड. एज आई सेड, अगर एंजाइटी है, कुछ भी चीज, उस पर वर्क करो. यू शुड हैव अ हेल्दी मेंटल एटीट्यूड दैट आई डू इट, नो मैटर व्हाट आई डू इट. फर्दर, टेस्ट योर नॉलेज. सिर्फ पढ़े मत जाओ, टेस्ट योर नॉलेज. एमसीक्यू की फॉर्म में टेस्ट करो. मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो. मेडिटेशन करो. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट डू दिस थिंग कि हफ्ता कमरे में बंद हुए हो, ऐसा कुछ होता है. अगर आपका एग्जाम नियर बाय भी है, यू शुड हैव अ गुड फिजिकल एक्टिविटी. चाहे आधे घंटे के लिए वॉक पे चले जाओ, कोई भी अपना पैशन फॉलो करो. राइटिंग में इंटरेस्ट है, राइटिंग करो. गाने सुनो. मतलब अपने आपको बंद मत कर लो. जेल नहीं है ये, प्रिपरेशन है. जितने अच्छे से करोगे, उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा. Then, as I said, choose your circle wisely. नेगेटिव लोगों की कम सुनो, पॉजिटिव लोगों की ज्यादा सुनो, क्योंकि that will help you to grow further in this field. And as I said, I really hope विशन पर आप लोगों का एग्जाम निकल जाए. और अगर नहीं भी निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम आपको जिंदगी की सीख बहुत अच्छी देता है. उसको अच्छे से सीख लेना, मूव फर्दर विद इट. इंटरव्यू के लिए जो सजेशन मेरा प्राची रहेगा, एज आई सेड, पर्सनालिटी पे वर्क करो. देखो, एक चीज ध्यान रखो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंसान हो, और जो इंटरव्यू दे रहा है मतलब आप भी इंसान हो. राइट. एक चेस की गेम अगर आपको समझ आ जाती है कि इस चेस में ये जो होता है, ये पर्सन ऐसे मूव कर सकता है, या मेरा इंटरव्यू मुझसे ये सवाल पूछ सकता है, तो यू विल बी ओके विद इट. देखो, डर सबको लगता है. यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस होता है. यू स्ट्रेस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस होता है. यू शुड नो कि मेरे को एक लेवल तक डर लग सकता है, एक लेवल तक एंजाइटी हो सकती है, विच इज नॉर्मल. बट मुझे एक्सट्रीम में हो रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग. अगेन, इंटरव्यू के लिए
जितने मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो, फैमिली के साथ डिस्कशन करो, पुराने आईएएस के जो इंटरव्यूज है वो देखो, दैट रियली रियली हेल्प्स यू। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, बी यू। जितना आप अपने इंटरव्यू में नेचुरल रहते हो उतना बेटर होता है। फेक मत करो, यू नो, बी यू। एंड अगर आप वो रहते हो जो आप अपनी लाइफ में हो, द रियल यू, आई बिलीव लाइफ का कोई भी एग्जाम आप फेल नहीं करोगे। एंड एज आई सेड, अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है, आप एक लेसन जरूर लेके निकलोगे, विच विल मेक यू अ बेटर पर्सन इन योर लाइफ अहेड। ओके, सो ऑन दैट नोट आई वुड बी वाइंडिंग अप, और मैं अपना हर मॉड्यूल कह लो या जो भी वेबिनार कह लो, एक पोएट्री के साथ एंड करती हूँ so that I can motivate you people. So the poem I'm going to narrate today is मंजिल। 2 मिनट और लेंगे, टाइम हमारा ऊपर हो चुका है। जब तक मैं पोएम नरेट कर रही हूँ तब तक अगर आप में से किसी का सवाल है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और अगर यहाँ पे नहीं भी पूछ सकते, so you can drop in the mail and Atul sir मेरे को pass on कर देंगे, and I'll drop in the answers to you on your mail ID. I'll definitely you know reply back for sure. Okay, and फर्दर के लिए एज ए सेड कुछ मॉड्यूल्स हम लेके आएंगे, उसके लिए भी अतुल सर आपको मेल मार्क कर देंगे। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन यू नो कम ऑन बोर्ड, एंड आई एश्योर यू द जर्नी वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो द पोएम आई एम गोइंग टू नरेट टुडे इज मंजिल। ओके, मंजिल तक पहुंचना है तो पूरी शिद्दत से काम कर, उन पलों को जीना है तो आज ना तू आराम कर। रास्ते बनाना आसान है, उन्हें तय करना हो सकता है मुश्किल, हौसला अपना बुलंद करके पूरी कर उन रास्तों की दूरी तू। अब जब तूने ये सोच लिया है कि उसी मंजिल को तुझे पाना है, तो रास्तों की मुश्किल से डरे बिना अपने सपने को साकार कर। बस इन रास्तों पे चलता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़, पतवार को अपनी हिम्मत बना, अपनी कश्ती को ढोता चल। फिर मंजिल ना लगेगी दूर तुझे और रास्ते भी हो जाएंगे आसान, तू हंसता हुआ चलेगा जीवन में, पूरी कर इन सपनों की दास्तां। So on that note, the best advice I can give you people is stay motivated, stay positive. It takes the same amount of energy to think negative than it takes to think positive. So सही रास्ता चूज करो। Negativity is like downhill, बहुत जल्दी आपको लेके आती है। Positivity जो होती है uphill होती है, थोड़ी मेहनत लगती है। But as I always say, the view from the top is always beautiful. And जैसे अतुल सर ने मेंशन करा था, मेरा लाइफ का मंत्रा यही है that you know no hill is tough to climb. So see you at the top. So on that note, I would like to wind up with this webinar, and I hope it was of some help to you, and wish you all good luck for this examination. And as I said, I hope विश पे आप सबका एग्जाम क्लियर हो, और एग्जाम से जो लाइफ की जर्नी, जो लाइफ की सीख मिलती है, उसको प्लीज अच्छे से लेते चलो। God bless you all. Take care. Lots of love. Good luck. Bye. Thank you, Charu ma'am. Thank you, sir. Thank you for having me. Thank you, Charu ma'am. And we will come up with, जैसे चारू मैम ने बताया कि हम लोग कुछ मॉड्यूल्स के साथ में आएंगे, उसका डिटेल्स हम आपको भेजेंगे. That will like help you. If you are interested, you can join those things. Maybe like in a like few days you will get that. And thank you.